Hello and welcome to Clarity for UPSC. I am Dr. Shivan. This video is an evidence-based strategy for modern history for prelims 2025. Modern history में हमें बहुत सारे questions हैं. Should we read spectrum or not? Is there a better source available? और क्या spectrum enough है? Or should we replace spectrum with something? यही सारी बातें we will do in this video. As you know, in my STEP initiative, which is Dr. Shivan's targeted exam plan, we are going to finish economy by Thursday. Uske baad we will be transitioning to modern history. So for modern history, this video will be a one-stop solution for you to understand how to study this subject, regardless of whether you've studied spectrum before, not studied spectrum before, you're looking for a new source. We'll solve all of the problems in this video. पहले थोड़ा evidence देख लेते हैं. As you know, evidence is now my favorite way of making a new strategy. तो evidence अगर हम देखें, there is a concerning trend. Modern history के questions have been declining over time. So 2020 में there were 9 questions from modern history, and last year in 2024 there were only 2 questions from modern history. तो अब क्या मतलब इस सब्जेक्ट को इग्नोर करा जा सकता है? Absolutely not. We cannot ignore this subject because you never know where this graph is going to go from here. But yes, a certain trend is definitely visible here. ये सेम ट्रेंड ज्योग्राफी में भी था और 2024 में ज्योग्राफी में सडनली स्पाइक आया था. तो इग्नोर तो नहीं कर सकते, बट दिस इज एन इंपॉर्टेंट मेट्रिक फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट लॉट ऑफ टाइम शुड नॉट बी स्पेंट ऑन दिस सब्जेक्ट बिकॉज यूपीएससी इज मूविंग टुवर्ड्स अदर एरियाज ऑल्सो. अब पीवाईक्यू रेपिटेशन की अगर हम बात करें, अभी तक मैंने आपको इकोनॉमी और ज्योग्राफी की स्ट्रैटेजी बताई है. दीज आर द सब्जेक्ट्स वी हैव बीन डूइंग सो फार इन स्टेप. उनमें पीवाईक्यू में बहुत डायरेक्ट रेपिटेशन भी था. देयर वाज डायरेक्ट रेपिटेशन, क्वेश्चंस वर रिपीटेड एज इट इज. यहां पर वैसा नहीं है. इन दिस केस इन मॉडर्न हिस्ट्री देयर इज नॉट मच एविडेंस ऑफ डायरेक्ट रेपिटेशन. देयर इज एविडेंस ऑफ थीमैटिक रेपिटेशन. थीम बेस्ड रेपिटेशन है यहां पर. जैसे यहां पर फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में पूछा है और यहां पर भी फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में पूछा है, बट अगेन द क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन अ डिफरेंट कैपेसिटी एंड ऐसी रेपिटेशंस भी रेयर हैं. थीम्स आर इंपॉर्टेंट. तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हुए द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थीम्स, एंड अगेन वी विल सी दिस थ्रू एविडेंस. ये इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ दिस वीडियो बिकॉज दिस विल टेल अस वेयर वी आर मेसिंग अप इन मॉडर्न हिस्ट्री. मॉडर्न हिस्ट्री को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया. सो आई डिवाइडेड मॉडर्न हिस्ट्री इनटू 4 पार्ट्स. I call the first part British Acts and Policies. यहां पर क्या इंक्लूडेड है? यहां पर इंक्लूडेड है Constitutional Acts, British policies towards the civil services, policies towards judiciary, economic impact of British rule, etc., etc. The second part is the part that we study the least: socio-religious reforms, tribal movements, and pre-British Europeans. So the role of the Portuguese, the Dutch, the Danes, the French, etc., along with socio-religious reforms and tribal movement. Third part is timeline of the freedom struggle. जो actual freedom struggle हुई है from the revolt of 1857 till the actual partition and India getting independence. So everything that happened in this timeline, जैसे कि civil disobedience movement, non-cooperation movement, the Cripps mission coming to India, etc. And lastly, there are some personalities and other facts. जैसे कि देशेर कथा पे एक बार क्वेश्चन पूछा गया. अब अगर हम इन चारों सेक्शंस का डिवीजन देखें कि कितने क्वेश्चंस आए हैं बेस्ड ऑन द एनालिसिस, ब्रिटिश एक्ट्स एंड पॉलिसीज इज 28% ऑफ द क्वेश्चंस. यहां पर मैं देखूं सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स, यूरोपियंस एंड ट्राइबल मूवमेंट्स, 24% ऑफ द क्वेश्चंस. सो ये जो दो चीजें हैं ये मिलाकर 50% ऑफ क्वेश्चंस ला रही हैं मॉडर्न हिस्ट्री में. बट डू वी स्टडी देम फॉर 50% ऑफ द टाइम? नो. हम अपना सारा टाइम यहां लगाते हैं टाइमलाइन, बट दिस टाइमलाइन इज मियरली 24%. अब अगर आप 100% पढ़ाई 24% क्वेश्चंस के लिए करोगे तो मॉडर्न हिस्ट्री में वी विल कीप ऑन स्ट्रगलिंग. ये हैं पर्सनालिटीज एंड अदर फैक्ट्स. दिस इज नॉट मच वी कैन डू हियर बिकॉज ये क्वेश्चंस लार्जली रैंडम देखे गए हैं. तो पहले तो हमें यहां से समझना है कि ये जो दो पार्ट्स हैं, ब्रिटिश एक्ट्स एंड पॉलिसीज, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, सिविल सर्विसेज, जुडिशरी, आर्मी, पुलिस, इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश, this is the most important part of modern history. Secondly, social religious reforms, Europeans before British and tribal movements.
दिस इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। तो यहां पर 50% से ज्यादा क्वेश्चंस हैं, वी नीड टू फोकस ऑन दिस। टाइमलाइन ऑफ कोर्स इज इंपॉर्टेंट, बट पूरा टाइम यहां मत स्पेंड करो, एंड सम रैंडमनेस विल ऑलवेज बी देयर, इसका हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब सोर्सेज की एनालिसिस कर लेते हैं। पहला सोर्स इज स्पेक्ट्रम। एवरीवन नोस दिस इज द book we all have been following. Day by day it is getting bulky also, that's also a problem. 13 out of 25, this is the performance of spectrum in the past 5 years. past 5 years में 25 क्वेश्चन है, एवरेज 5 क्वेश्चन पर ईयर। 13 out of 25 are solvable from spectrum. अब प्रॉब्लम क्या है? एवरीवन रीड्स इट, तो सबको पढ़नी पड़ती है, so it's merely a confirmation bias. बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज दिस बुक, which is old NCERT, Modern Indian History, written by Bipin Chandra. Bipin Chandra sir is, as you might be aware, one of India's best historians. He has written this book. ये old NCERT है, इसमें 11 out of 25 questions are solvable. But now let me show you the most interesting stat. अगर हम ये दोनों बुक कंबाइन करके पढ़ लें, हम ये भी पढ़ लें और ये भी पढ़ लें, तो 17 out of 25 are solvable. तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो स्पेक्ट्रम में हैं, यहां नहीं है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो यहां हैं और यहां नहीं है। अब लेकिन प्रॉब्लम हो गई, स्पेक्ट्रम ही इतनी बड़ी बुक है, स्पेक्ट्रम ही नहीं पढ़ी जा रही, और मैं अब आपको कह रहा हूं कि 2 बुक पढ़ लेते हैं और अब आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। सो इन दिस वीडियो ओनली आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉर यू। अब करना क्या है, स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। स्पेक्ट्रम में देयर आर मल्टीट्यूड ऑफ इश्यूज। मैंने कल आप लोगों से कमेंट्स मांगे थे ऑन माय टेलीग्राम चैनल कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है मॉडर्न हिस्ट्री में, आपने ही ये बातें बताई हैं, एंड आई एग्री विद ऑल ऑफ देम। फर्स्टली, दिस बुक इज डिफिकल्ट टू रीड, राइट? देयर आर नो इलस्ट्रेशंस, देयर आर नो मैप्स, PYQs इंटीग्रेटेड नहीं है, इट्स जस्ट टेक्स्ट। इट माइट बी रिटन वेल, इट्स एक्चुअली नॉट इवन रिटन डायरेक्टली लाइक अ हिस्ट्री बुक, इट्स अ कंपाइलेशन ऑफ लॉट ऑफ हिस्ट्री बुक्स, राइट? एंड हो सकता है कि आप इससे इंफॉर्मेशन निकाल पाओ, it's possible that you might be able to extract the information from it, but वो एक स्टोरी की तरह हिस्ट्री को नहीं यहाँ पर लिखा हुआ। ये मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है। इट्स अ बुक दैट इज दिस बिग। A4 शीट पढ़ने की आदत होती है हमें। Why do I have to strain my eyes so much कि मैं एक छोटा पेज पढ़ूं? ऑलरेडी चश्मा लगा हुआ है मुझे, नंबर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग डे बाय डे, और नंबर बढ़ जाएगा अगर मैं ये पढ़ूंगा तो। Then it is overloaded with facts, no doubt about it. Lots and lots of facts are there, and 900 pages. It is getting bulkier by the day. Why is it getting bulkier? Because when questions don't come from spectrum, it gets updated and those questions are added. Day by day it is getting bulky. तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो अब इस प्रॉब्लम में क्या करें? देखो, मुझे लगता है यहां पर 2 कैटेगरी के लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं। There is one category of people who have read spectrum less than 2 times. जिन्होंने शायद कभी एक बार स्पेक्ट्रम पढ़ी है बट अच्छे से नहीं पढ़ी, या कभी भी नहीं पढ़ी। You have never read spectrum or you have not read spectrum properly. पहले मैं इस कैटेगरी ऑफ लोगों के लिए I will give you a solution. फिर there must be a second category of people who have read spectrum at least 2 times or more than 2 times. These people should not change their source. अगर आप 2 से ज्यादा बार स्पेक्ट्रम पढ़ चुके हो, it does not make a lot of sense for you to change your source. बट अगर आपने एक ही बार पढ़ी है, अच्छे से नहीं पढ़ी, और आपको लगता है यार कभी पहले पढ़ ली थी, then you can change your source. तो इन दोनों की बात कर लेते हैं। अब ये क्राइटेरिया और ये क्लासिफिकेशन आपको खुद के लिए करनी है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं इस कैटेगरी में फॉल करता हूं या इस कैटेगरी में फॉल करता हूं। बिकॉज इफ यू हैव रेड इट मोर देन 2 टाइम्स, आपने 2 बार से ज्यादा स्पेक्ट्रम पढ़ ली है, डोंट चेंज योर सोर्स। अगर आपको लगता है कि आप 10 डेज में स्पेक्ट्रम रिवाइज कर सकते हो, सोर्स चेंज मत करना। बट कभी भी नहीं पढ़ी है, यू आर अ फर्स्ट टाइमर, राइट नाउ यू आर ट्राइंग टू रीड स्पेक्ट्रम, देन वी हैव अ डिफरेंट स्ट्रेटजी फॉर यू। तो पहले इसकी बात करते हैं, फिर इसकी बात करेंगे। I will put the relevant timestamps in the video so you can skip to your relevant part accordingly. Up. If you have not read spectrum before, don't read it. मत पढ़ो। देखो, स्पेक्ट्रम लोग क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि सब लोग पढ़ रहे हैं। There is no other reason. कोई बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस नहीं है इस बुक की, ना ही ये बुक बहुत अच्छी है in terms of readability. It's a good compilation of facts, no doubt. But just because everyone else is reading, I have to read it. तो अब मैंने क्या किया? I made a source for modern history which contains everything that is there in spectrum, plus additions from Bipin Chandra, plus
plus also additions from Plassey to Partition, which is the book of शेखर बंदोपाध्याय सर, और इसका एक सोर्स बना दिया है. It is in a much more readable format. What does this source look like? पहले वो देखते हैं. This source looks like this, and I have not made this. This is actually very kindly done by Kaval Baveja sir, who is the history faculty at Sarthi IS. He has made these notes which are combining all these things. अब इन नोट्स में और स्पेक्ट्रम में फर्क क्या है? पहले तो स्पेक्ट्रम का सब कुछ यहाँ कवर्ड है. The good thing is that one, there is a proper index for you to do active recall. आप इस इंडेक्स से एक्टिव रिकॉल कर सकते हो. Second, when you see this, when you see the notes, you will see that pictures have been inserted. It has been written with spaces. अगर आपको कुछ ऐड करना हो, कुछ हाईलाइट करना हो, important parts have been underlined and highlighted already for you. और एक बहुत रीडेबल फॉर्मेट में है. These are A4 pages, right? There is enough spacing. There are pictures, there are maps for us to understand, and especially those parts जो हम स्पेक्ट्रम में अच्छे से नहीं पढ़ते. For example, later Mughals or the advent of new empires, for example. So there is a map here ताकि हमें एक context मिले, right? अब हम यूरोपियंस की बात करें, अगर यूरोपियंस वाला पार्ट हम ढंग से नहीं पढ़ते, we don't read the part of Europeans entering India, तो वो पार्ट भी यहाँ पर ढंग से कवर्ड है. I'll show you it in the future chapters. अब second good thing about these notes, हमारे पास सारे PYQs टॉपिक वाइज सॉर्टेड हैं विद देयर आंसर्स. तो जो ये, और ये 20 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, नॉट ओनली 10 इयर्स, 20 इयर्स PYQs आर हियर. तो जो ये चैप्टर हमने पढ़ा, जैसे इमर्जेंस ऑफ न्यू स्टेट्स, इस पे ये क्वेश्चन आया, प्रीलिम्स का PYQ है, यहां पर आंसर और एक्सप्लेनेशन साथ में लिखी हुई है. सो यू विल बी एबल टू स्टडी देम अकॉर्डिंगली. और यहां पर कुछ एक्स्ट्रा PYQs भी हैं जो maybe they are PYQs from medieval history added here, ताकि हमारी PYQs की रिवीजन भी प्रॉपर्ली हो जाए. जैसे नेक्स्ट चैप्टर यहां आप देखोगे यूरोपियंस का. सो इफ दिस इज फॉर एग्जांपल द मैप ऑफ यूरोपियन नेशंस एंड हाउ दे हैव कॉलोनाइज्ड, सो रूट्स टेकन बाय अर्ली यूरोपियन एक्सप्लोरर्स आर गिवन हियर, ताकि हमें थोड़ा बेटर कॉन्टेक्स्ट मिले. सो वन ऑप्शन इज यू कैन जस्ट रिलाई ऑन दीज नोट्स. द फर्स्ट पार्ट इज ऑलरेडी अपलोडेड ऑन माई वेबसाइट. सो इफ आई गो टू माई वेबसाइट हियर विच इज drshivin.com, यहां पर आप जाओगे फ्री रिसोर्सेज में. फ्री रिसोर्सेज में आप नीचे जाओगे एंड हियर यू विल सी मॉडर्न हिस्ट्री नोट्स. पार्ट 1 इज ऑलरेडी अपलोडेड. आप यहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो एंड यू कैन रीड दीज नोट्स. एंड Kaval sir has promised and guaranteed that there is nothing in spectrum that is missed here. Second part will be uploaded by Sunday. अभी फर्स्ट पार्ट है, हम थर्सडे से स्टार्ट करेंगे. आई विल कीप गिविंग यू टारगेट्स. तो उन टारगेट्स के हिसाब से अभी जो हमने संडे तक पढ़ना है वो यहाँ पर ऑलरेडी है. संडे के बाद जो पढ़ना है, संडे तक आई विल अपलोड द अदर पार्ट ऑल्सो. सो यू कैन जस्ट रिलाई ऑन दीज नोट्स एंड द प्रॉब्लम इज सॉर्टेड. ये एक ऑप्शन है. सो इफ यू हैव नेवर रेड स्पेक्ट्रम बिफोर, आप बस इन नोट्स पे रिलाई कर लो एंड योर प्रॉब्लम इज सॉर्टेड. इट डील्स विद ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स. जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ पर मैंने स्पेक्ट्रम की बताई थी, सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर सॉर्टेड हैं. ये A4 शीट्स होंगी एंड दीज नोट्स विल रन इनटू अबाउट 300 to 400 पेजेस, विच इज नॉट दैट बिग ऑफ अ साइज जो हम प्रीलिम से पहले पढ़ ना पाए. प्रॉब्लम सॉर्टेड. अब बात करते हैं इफ यू हैव रेड स्पेक्ट्रम बिफोर. अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जिसने 2-3 बार स्पेक्ट्रम पढ़ी हुई है एंड you have this confidence on yourself that I can revise this book in about 7 to 10 days, then if that is the case, please don't change your source. न्यू सोर्स पे मत जाइए अगर आप 2 बार से ज्यादा स्पेक्ट्रम पढ़ चुके हैं. मेक योर रीडिंग ऑफ स्पेक्ट्रम बेटर. स्पेक्ट्रम को बेटर तरीके से पढ़िए, राइट? अब दोनों कैटेगरीज में खुद को फिल मत करना. अगर आप इस कैटेगरी में हो देन स्टिक टू दिस कैटेगरी. अब बात करते हैं हाउ कैन यू मेक योर रीडिंग ऑफ स्पेक्ट्रम बेटर. कैसे स्पेक्ट्रम को आप बेटर पढ़ सकते हो. इसके लिए लेट मी शो यू माय ओन स्पेक्ट्रम. मैंने स्पेक्ट्रम को पढ़ा था इन अ डिजिटल फॉर्मेट रादर देन रीडिंग इट इन अ पेज वाइज स्मॉल पेज फॉर्मेट, जो मेरे से नहीं पढ़ा जाता था. एज यू कैन सी चश्मे. तो मैंने इसे डिजिटल फॉर्मेट में पढ़ा था. दिस इज माय स्पेक्ट्रम. अब कैसे पढ़ा मैंने स्पेक्ट्रम को, उसके बारे में बात करते हैं. इन द फर्स्ट रीडिंग, जैसे आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो, इन द फर्स्ट रीडिंग डोंट हाईलाइट एनीथिंग. कुछ भी हाईलाइट मत करो. Just read and understand the story. Keep reading it. पूरा चैप्टर पढ़िए फर्स्ट रीडिंग में, चैप्टर बाय चैप्टर. ये नहीं कि पहले पूरी बुक ही पढ़ ली एक बार, नहीं, एक एक चैप्टर की बात कर रहे हैं. दिस चैप्टर इज अबाउट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. फर्स्ट रीडिंग, रीड दिस कंप्लीट चैप्टर. ये चैप्टर पूरा ढंग से पढ़ लो. अब जब आपने पढ़ लिया, इन द सेकेंड रीडिंग व्हाट आर यू सपोज टू डू? टेक 2-3 हाईलाइटर्स. मे बी 2 हाईलाइटर्स विल बी सफिशिएंट. Only highlight those parts
विच यू डोंट ऑलरेडी नो, बिकॉज पुराने कॉन्टेक्स्ट से भी आपको काफी कुछ पता होगा, ये पहला चैप्टर तो है नहीं, पीछे का भी आपको कुछ पता होगा, एंड थिंग्स दैट यू थिंक आर डायरेक्टली इंपॉर्टेंट इन द एमसीक्यू, यू हाईलाइट देम हियर। जैसे यहां पर कैलकाटा सेशन को हाईलाइट किया हुआ है, I have highlighted that the Calcutta session was where the Nehru report was approved, ठीक है। एंड यहां पर what I used to do is write the context, जहां पर यहां मैंने लिखा हुआ है that Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose ji they wanted the demand of Purna Swaraj, 1 year grace period was given to British, call for Purna Swaraj। अब यहां पर यही चीज लिखी होगी, this is what is written here, but I have summed it up and written here, ताकि मैं अपनी सेकंड रीडिंग में मैंने ये काम कर लिया, ताकि जब अपनी मैं थर्ड रीडिंग करूं, फाइनल रिवीजन करूं, देन आई कैन जस्ट गो थ्रू इट क्विकली। तो सेकंड रीडिंग में ये काम करना है, जो ये कॉन्टेक्स्ट वाला पार्ट है उसको सम अप करके साइड में लिख लिया, जो बिल्कुल एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट कर लिया। यू विल सी दिस हैपनिंग थ्रू आउट। तो 2 या 3 हाइलाइटर्स यूज किए, जैसे यहां पर पढ़ते हैं। अब अगर मुझे पढ़ना है तो मैं कैसे पढ़ूंगा? पॉलिटिकल एक्टिविटी ड्यूरिंग 1929, गांधीजी ट्रैवल्ड इंसेसेंटली प्रिपेयरिंग पीपल फॉर डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन, दिस वाज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव वर्क। एग्जांपल, बरदोली एजिटेशन लेड बाय वल्लभ भाई पटेल, CWC मेड फॉरेन क्लॉथ बॉयकॉट कमिटी, बॉयकॉटिंग फॉरेन क्लॉथ एंड पब्लिक बर्निंग ऑफ फॉरेन क्लॉथ। यहां पर अदर डेवलपमेंट्स क्या थी? मीरठ कंस्पिरेसी केस, मीरठ कंस्पिरेसी केस में यहां पर इसका कॉन्टेक्स्ट लिखा है दैट इट वाज अ रेलवे स्ट्राइक हैपनिंग बाय द कम्युनिस्ट पार्टी, bomb in the Central Legislative Assembly, and there was minority labor government in England led by Ramsay MacDonald, who was the prime minister at that time. So now I can read this quickly. तो जैसे अगर आप आगे भी जाओगे, only the important things will be highlighted here, context will be written on the side. ये काम आपको सेकंड रीडिंग में करना है, ताकि आप थर्ड रीडिंग में when you are finally revising this book, you don't have to read every word again, you only read this highlighted part. अब I know what is coming to your mind. I know you will say सर अपनी स्पेक्ट्रम दे दो। See, if I could, I would. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। If you can suggest a way to give this to you, मैं दे दूंगा। I don't want to give the attempt again, and I don't have a problem with sharing this. The problem here is violation of copyright, which I am strictly against. तो अगर मैं ये शेयर करता हूँ, this is a direct violation of copyright. It's a book that an IPS officer has written. He has done effort on it. तो मैं अगर आपको ये शेयर कर दूँ, it's a violation of copyright. If you can find any other way of getting around that which does not violate copyright, आई एम हैप्पी टू शेयर दिस विद यू। आप कमेंट्स में मुझे बता देना। अब एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, जैसे यहां पर हम अगेन वी आर कंटिन्यूइंग टू रीड। अब जैसे यहां पर ये स्मॉल पैराग्राफ है, व्हाई सॉल्ट वाज चोजन एज द इंपॉर्टेंट थीम। अब ये पूरा पैराग्राफ मैं थर्ड रीडिंग में नहीं पढ़ना चाहता, ओनली द इंपॉर्टेंट थिंग्स आई वांट टू रीड। तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? इट वाज नॉट सोशली डिवाइसिव, इट लिंक्ड स्वराज टू रूरल पुअर, अर्बन कुड सिंबॉलिकली एसोसिएट। ये तीन ही चीजें हैं ना, इस पैराग्राफ से यही 3 चीजें निकलेंगी बस। तो इससे ज्यादा हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, राइट? जो हाईलाइटेबल है वो हाईलाइट, जो लिख सकते हैं उसको साइड में लिख दिया। दिस इज व्हाट वील डू। अब लास्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू हियर, ये इस टाइप की चीजें बहुत हैं स्पेक्ट्रम में। स्प्रेड ऑफ दिस मूवमेंट, स्प्रेड ऑफ सॉल्ट लॉ डिसोबीडियंस, स्प्रेड ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं। अब यहां पर क्या करना है? यहां पर जैसे ये आपने पढ़ लिया, आई रेड दिस, हर जगह पेशावर में क्या हुआ, शोलापुर में क्या हुआ, धरासाना में सरोजनी नायडू जी, इमाम साहिब एंड मनीलाल थे, ठीक है। अब ये याद करना मुश्किल है, तो व्हाट इज द सोल्यूशन हियर? व्हाट आई डिड वाज आई क्रिएटेड अ मैप। मैंने एक मैप क्रिएट कर लिया ऐसा। दिस इज अ मैप नाउ ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब यहां पर कोई कॉपीराइट नहीं है। दीज थिंग्स आई विल शेयर ऑन माई ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप ऑफ स्टेप। जैसे जैसे टारगेट्स आएंगे, जिस दिन फॉर एग्जांपल सिविल डिसोबीडियंस का चैप्टर आएगा टारगेट्स में हमारे, उस दिन मैं ये चीज आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब देखो, इट्स सो इजी टू अंडरस्टैंड। यहां पर लिखा है धरसाना में देवर सरोजनी नायडू, इमाम साहिब एंड मनीलाल, शोलापुर में टेक्सटाइल स्ट्राइक, फॉरेस्ट लॉ कहां कहां वायलेट हुआ? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, सिबिरम्स वर फॉर्म्ड इन आंध्र प्रदेश, कनिंगम सर्कुलर प्रोटेस्ट वाज हैपनिंग इन आसाम। ये चीजें मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा फॉर इजी रिमेंबरिंग इफ यू आर पार्ट ऑफ द सेकंड कैटेगरी एंड यू आर रीडिंग स्पेक्ट्रम अगेन। यहां पर मैंने और भी थोड़ी मेहनत करी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। दिस ऑल्सो आई विल शेयर विद यू, जहां जहां मेरे पास कुछ ऐसा हुआ। जैसे ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेक्ट्रम का, इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। अब यहां पर क्या करें? आई मेड नोट्स ऑफ दिस एंटायर चैप्टर बिकॉज दिस चैप्टर गेट्स आस्क्ड इन मेंस ऑल्सो। तो मैं आपको अपने एक्चुअल नोट्स दिखा देता हूं ऑफ दिस चैप्टर।
So I made the chapter notes like this: economic impact of British rule, introduction, कुछ स्पेक्ट्रम के screenshots, trading policy, then what was happening, mercantilism, impact, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, कहां कहां पर रियोतवारी, महलवारी, परमानेंट सेटलमेंट कहां कहां पर था, कॉमन फीचर्स क्या थे। अब ये चीज स्पेक्ट्रम में उतने अच्छे से नहीं दी हुई कि परमानेंट सेटलमेंट में क्या हो रहा था, रियोतवारी सेटलमेंट में क्या हो रहा था, राइट, व्हाट इज सब इन्फ्यूडेशन, व्हाट इज महलवारी सिस्टम एक्सेट्रा। दीज ऑल्सो आई विल शेयर विद यू। जहां जब जब वो टारगेट्स आएंगे तब तब जहां जहां मेरे पास ऐसा कुछ रेलेवेंट होगा, आई विल शेयर विद यू ऑन द स्टेप ग्रुप। आप किसी भी कैटेगरी में हो, यू कैन यूज दिस फॉर अ रेफरेंस। तो आपका काम एटलीस्ट इन चीजों में आसान हो जाएगा। आई डोंट हैव दिस फॉर एवरीथिंग, बट जहां जहां मेरे पास है, आई विल हेल्प यू विद दैट। अब लास्ट थिंग, अगर मैं ये वाला पार्ट देखूं, now this is a very important part of the video. I hope you are still with me and you are concentrating. I know थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है, but it's important to understand this. ये हमारे स्पेक्ट्रम का इंडेक्स है। यहां पर ये देखो, इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर, डोंट रीड आफ्टर दिस, इसके आगे का मत पढ़ना। ये पोस्ट इंडिपेंडेंस है, इसके नोट्स मैं आपको स्टेप में प्रोवाइड करूंगा। ये 590 से आगे जाके कुछ 300 पेज हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री नहीं है। These are post independence. Don't read this. I'll give you a solution for this when the time comes. इसको छोड़ देना, आगे बात करते हैं। Let's go back and see अब क्या क्या है स्पेक्ट्रम में। देखो, स्पेक्ट्रम के अगर हम यूनिट्स देखें, I'll just talk about one very important thing here, which is acts. अगर हम स्पेक्ट्रम के यूनिट्स देखें, पहले ये सोर्सेज एंड अप्रोचेस, ये वाला यूनिट हमें नहीं पढ़ना। फ्रॉम हेयर वी हैव टू रीड दिस पार्ट, वी इग्नोर, इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसको इग्नोर मत करना। अगर स्पेक्ट्रम से नहीं पढ़ा जा रहा तो एटलीस्ट वो कबल सर वाले नोट से ये वाला पार्ट जरूर पढ़ लेना। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, दिस इज फेयरली इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट समथिंग यू कैन स्किप। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीजें हमें पढ़नी है। अब लेट मी शो यू लास्ट वन थिंग, ये तो हमें पढ़ना ही है। अब यहां पर एक चैप्टर देखते हैं, वी हैव टू रीड ऑल ऑफ दिस, इंडिपेंडेंस विद पार्टीशन, देन दिस चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट्स। अब जैसे यहां पर एक चीज दी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब जो हमारा टाइमलाइन वाला पार्ट था, यहां पर एक जगह दी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इन विच चैप्टर, इन चैप्टर 26। टाइमलाइन वाले पार्ट में चले जाते हैं। इफ वी गो टू द टाइमलाइन पार्ट, यहां पर भी I think just before this, यहां पर भी आपको दिख जाएंगी द सेम थिंग, यहां पर भी आपको वो सेम चीज दिखेगी। what will we see here? Even the Montague-Chelmsford reforms we will see here. The Government of India Act 1919 यहां पर भी दी हुई होगी, right? I'm unable to just find it in the index, but of course it's going to be there. अगर साइमन कमीशन है, स्वराजस हैं, तो सेम थिंग is going to be there here also, right? अब अगर यहां पर भी है, इट इज देयर इन द टाइमलाइन ऑल्सो, यहां पर जब हम टाइमलाइन पढ़ेंगे तो यहां पर भी है, राइट? अब दूसरी चीज है कि इट इज ऑल्सो गिवन एट द एंड। थर्ड थिंग इज इट इज ऑल्सो गिवन इन लक्ष्मीकांत। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स जहां भी हैं, दे आर गिवन इन 3 प्लेसेस। वन इज द नॉर्मल टाइमलाइन, जहां पर टाइमलाइन है, जैसे यहां पर टाइमलाइन थी अबाउट द राउलेट सत्याग्रह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वहां पर दी हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। सेकंड, स्पेक्ट्रम के एंड में दी हुई है, एंड में एक और चैप्टर है ऑन एक्ट्स, यहां पर भी एक्ट्स दी हुई है, यहां पर भी हमने देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इज गिवन। एंड थर्डली, अगर हम लक्ष्मीकांत देखें, लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर 1 है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, वहां पर भी ये एक्ट्स दी हुई हैं, और इन एक्ट से क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं। सो व्हाट डू वी नीड टू डू हियर? वी नीड टू रीड दीज 3 टुगेदर। अगर आप टाइमलाइन में, लेट्स से यू रीच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, आप यहां पहुंच गए, टाइमलाइन में ये एक्ट आ गई, तो सीधा ही रेफर टू दिस पेज इन स्पेक्ट्रम, गो बैक टू दिस पेज एंड रेफर टू दिस पेज, ऑल्सो रेफर टू लक्ष्मीकांत। और मैं आपको कुछ ऐसा नहीं कह रहा हूं विच आई हैव नॉट डन माई सेल्फ, लेट मी शो यू, दिस इज हाउ आई रेड दीज एक्ट्स। तो ये देखो, ये टाइमलाइन के बीच में एक्ट आई है, Montague-Chelmsford रिफॉर्म्स इज गिवन ऑन पेज 308। तो अब मैं आपको इंडेक्स में भी दिखा सकता हूं, दैट ऑन पेज 308, राइट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इज गिवन ऑन पेज 308, यहां पर दी हुई है, आगे भी दी हुई होगी। इट विल ऑल्सो बी गिवन लेटर व्हेन वी कम टू
ब्रिटिश पॉलिसीज, सो आफ्टर इंडिपेंडेंस यहां पर अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इज ऑल्सो गिवन ऑन पेज नंबर 509 एंड लक्ष्मीकांत ने भी दी हुई है। तो अब मैंने क्या किया यहां पर, रीड ऑल द थ्री थिंग्स टुगेदर। जैसे ही आप इस पार्ट पे पहुंचे, द मोमेंट यू रीच दिस पार्ट वेयर सच एक्ट्स आर गिवन, add everything that you can from those parts. And since I was reading digitally, मैंने अपने लक्ष्मीकांत के पेजेस भी यहां पर ऐड कर दिए। ठीक है, जैसे अब आई रेड दिस, यहां पर ये टाइमलाइन में दिया है, कुछ चीजें यहां पर ऐसी हैं जो बाद में पेज 509 पे होंगी, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे लक्ष्मीकांत में होंगी। तो क्या क्या चीजें फर्स्ट टाइम हुई थी इस एक्ट में वो मैंने लिख दिया, और ये लक्ष्मीकांत से मैंने ऐड किया हुआ है। दिस इज लक्ष्मीकांत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 फ्रॉम लक्ष्मीकांत, ये भी मैंने ऐड कर दिया ताकि अब वो एक जगह पर आ जाए। सो दिस डेफिनेटली यू हैव टू डू, राइट। दिस विल एंश्योर कि हमारे क्वेश्चंस गलत ना हो एंड वी आर नॉट डुप्लीकेटिंग आवर एफर्ट। So broadly, I have discussed what you have to do if you have not read spectrum before. If you have read spectrum before, just change your method of reading spectrum and these problems will be solved. अब modern history के जो भी targets हैं, we will be starting those targets. Modern history के targets we will be starting from Friday of this week. तो Friday से हम target start करेंगे. The targets will be posted in STEP. STEP is my free guidance initiative for prelims. एंड जो भी टारगेट्स वहां पर पोस्ट हो रहे हैं उससे रिलेटेड अगर मेरे पास कोई भी नोट्स होंगे, माय नोट्स आर नॉट वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड इन वन प्लेस, अगर जो वो टारगेट्स हैं वो कहीं पर एक जगह पे मेरे को मिल जाएंगे, उन टारगेट से रिलेटेड अगर मेरे पास कोई नोट्स हैं, जैसे इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल पे या कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट पे मेरे पास कोई भी नोट्स हैं, आई विल बी अपलोडिंग दोज नोट्स इन द स्टेप ग्रुप। इफ यू आर फॉलोइंग कंवल सर्स नोट्स तो वैसे ही आपकी प्रॉब्लम सॉर्टेड है, बिकॉज आई एम श्योर दे आर मच मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड कवर एवरीथिंग, राइट। So I hope I've been able to solve this problem. हम modern history को 2 हफ्ते देंगे. In 2 weeks we will finish everything. In these 2 weeks are going to be easy, right? 2.5 weeks approximately we are going to give. तो इन weeks में मैं आपको backlog cover करने का भी time दूंगा. So I hope this helps. I hope at least now the picture of modern history is clear and you are able to put your best foot forward. Thank you and see you next time.